Hello guys, in today's finance session, we are learning Forex and in Forex, we are learning fate of forward contracts. Yes, so when we are using forward contracts for hedging purpose, there would be a possibility as an exporter or an importer, I would have entered into a transaction which I'll be honoring on a future date. But what happens is I may be lucky enough to honor the transaction on the date of delivery, or I, unfortunately, may be forced to cancel the transaction so entered earlier, or I may be responsible to extend the same transaction at a future date. I mean to say you is, in case where my forward transaction in a foreign currency in terms of buying dollars or selling dollars, I may enter into delivering the same on due date or liable for early delivery or liable for late delivery. Also, in case of cancellation, I may be responsible for cancellation on due date or before the due date or subsequently. Similarly, even in extensions, I'll be liable under three situations: extending the contract so entered on the due date, extending the same contract before the due date, or extending it after the due date. This entire story can be sub-bifurcated into three elements based on delivery, based on cancellation, and based on extension. In today's session, I'm talking about early delivery of a future contract or a early delivery of a forward contract. Yani, the date on which we were expecting to get the delivery of our foreign currency. In this example, if I have been exporter and have sold goods worth $1 lakh, which are going to be receivable in a span of upcoming 2 months, if I get a delivery of that currency a month early, then what will be the fate under Fedai rules? Under Fedai rules, that's what we have been targeting here. And let us understand the entire story with an example of ICAI. I'll be sharing the screen with you to let you understand the same. So if I tell you, this is the fate of forward contracts, and here we are into the first phase, that is delivery under the contract. So in delivery, we have early delivery, delivery which is late, or a due date delivery. So if I'm focusing on the first example, that is, this is just for reference purpose. Okay, if everything is happening on the due date. So if you see the example number 3 of ICAI module, on 1st June 15, the bank enters into a forward contract for 2 months for selling USD 1 lakh at 65.50. On 31st of July, the spot rate was 65.75 or 65.25. Now, the contract is been entered on 1st of June and it's for a 2 month period. And on the due date, the amount to be debited would be exactly equivalent to the date mentioned here, that is 65.50. Sorry, I've selected the wrong thing. 65.50, the date at which you have booked the contract, right? And the spot rate becomes irrelevant because you have already entered into dash forward contract. So this is quite simple, whereby you have not delayed it, you have not extended it to whatever rate you have freezed it, that will be your rate at which you will be paying. Now coming to second scenario here, for which we are basically learning this, that is early delivery. So early delivery yani kya? How do you go further for the same as per FIDI, and how do you compute interest on the same? That's what we are going to learn under this level. Now, let's take this example number 4. And this example number 4 will teach us all about early delivery contracts
under the same. Let's start. So if you see here, on 1st October 15, an exporter enters into a forward contract with a bank and they are aiming to sell $1 lakh as on 31st December 2015 at 65.40. It means that on 1st of October, X is expecting to receive on 31st of December $1 lakh. And to freeze the fluctuation risk, he is expecting to close it at 65.40 flat rate. However, due to the request of the importer, Mr. X received this amount on 28th of November 2015. Yani, instead of 31st of December, he received amount on 28th of November. Mr. X requested the bank to take the delivery of remittance on 30th November 2015. That is before due date. यहाँ पे अर्ली डिलीवरी के लिए फेडरल रूल्स कहता है कि आप सिर्फ बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हो टू गेट द थिंग्स ऑफ अर्ली डिलीवरी एंड मोस्टली बैंकर विल हैव नो प्रॉब्लम्स टू गेट इट एक्सेप्टेड बट एज पर द प्रोविजंस इट्स एन ऑप्शन फॉर द बैंकर टू एक्सेप्ट अर्ली डिलीवरी सुनते जाओ क्या होगा now the interbanking rates on 20th of November the date on which we are expecting early delivery क्या थे तो ये कहता है कि नवंबर 20th को जिस दिन पैसा 1 लाख जल्दी आ गया on that date spot rate available था 65.22 since we are selling dollars it will be at 65.22 और उस दिन के लिए there is one more swap points given to you which enable us to identify 1 month forward rate if bank agrees to take the delivery since मैंने कहा था ये ऑप्शन होता है बैंक के लिए तो बैंक ने अग्री किया कि मैं अर्ली डिलीवरी लेने को रेडी हूँ what will be the net money what the Mr. X can get under the scenario. That's what we have to learn. Now, what I want you to understand is कि अगर banker is charging 18% interest rate and is ready to get the money early settled, what is the net money what banker can get in this entire transaction? That's what we need to understand in case of early delivery. Now, what I've done is I'll I'll just help you here a bit. I request you one thing, try to have the model open in front of you or use this question for reference. I'm just sharing the tablet screen here. So what I've done in this facet of learning with you all is, since I've taught you how do we do Forex transactions, squaring of the transactions, so I've made two situations for you. One is the logical method, what we'll be learning, and the second will be the method, what IC has given to us. And we will try to get the same answer under both the methods. So the method number one, which you are accustomed to, let me go with the same method again. Okay. So in method number one, I've just got some facts here. The contract was been entered on 1st of October 2015 and the date on which you were expected to receive money is 31st of December. This is 31st of December 2015. The rate fixed for the same to sell $1 is 65.40. The first thing to remember is अगर मेरा ट्रांजेक्शन टाइम पे होता तो आई वुड हैव रिसीव्ड हाउ मच 65,40,000 क्योंकि वो रेट पे मैंने फिक्स किया था टू सेल माय $1 lakh थ्रू माय एक्सपोर्ट एंड बैंक अग्रीड विद इट नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज बिफोर 31st December that is on 30th of November my debtor gave me the payment of $1 lakh and on that date this is the rate going on उस दिन का स्पॉट रेट दिया गया है हमें और उस दिन का 31st December तक के रेट को अराइव करने के लिए फॉरवर्ड रेट दिया गया है इन टर्म्स ऑफ स्वैप पॉइंट्स व्हिच आई ऐड टू माय स्पॉट रेट टू गेट माय फॉरवर्ड रेट व्हाट आई एम डूइंग हियर आई हैव रिटन फॉर यू ऑल द स्टेप्स रिक्वायर्ड फर्दर पहला स्टेप है कि दिस इज बेसिकली द लॉजिकल वे ऑफ गोइंग थ्रू इट I'll tell my bank my account has received $1 lakh.
the nostro account what bank would have given to us or vostro account. $1 लाख जो हमें मिले, since we cannot keep foreign currency in our account, in the bank's account, what $1 lakh what the bank received on behalf of us, that will be sold at the spot rate, that is of 30th of November rate, and the rate given of the spot is 65.22 for sale, and for buy it will be 65.27. So what I'll do is I'll tell my bank to sell the same now, or the bank will do it for me at 65.2 to the spot rate. And by that part, I'll be receiving 65,22,000 rupees. Now, what happens next year is, ये तो हो गया स्पॉट पे, बट जो मेरा ऑलरेडी फॉरवर्ड सेल खड़ा है फॉर 31st of December एट 65.40, दैट इज अ फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट बाय मी विद द बैंक, दैट आई हैव टू स्क्वायर ऑफ। तो उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए मुझे 1 मंथ फॉरवर्ड परचेस लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर ऑफ पोजिशन ऑफ फॉरवर्ड सेल विद बैंक बाय बाइंग 1 मंथ फॉरवर्ड। तो अभी मैं मेरे बैंक को कहूंगा कि मेरा 1 मंथ फॉरवर्ड ले लो ऑन द डिफरेंस पार्ट, तो सो दैट मेरा जो फॉरवर्ड सेल है उस बेसिस पे मुझे क्या मिल जाए, फॉरवर्ड परचेज। लेट मी चेक, शो यू हियर। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेरा 65.40 का ट्रांजेक्शन ऑलरेडी बुकड है। इसको, ये ट्रांजेक्शन क्या है, फॉरवर्ड सेल है, फॉरवर्ड सेल। इसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इस ड्यूरेशन का, इट्स अ 1 मंथ ड्यूरेशन का, आई वांट व्हाट, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट। तो हाउ डू आई गेट इट, एट व्हाट रेट? तो 65.27 में 15 100 पॉइंट्स में ऐड कर दूं, इट विल बी कमिंग टू 65.42। तो फाइनली व्हाट विल हैपन इज 65.42 और 65.40, इसका जो गैप है, देखो यहाँ पे 65.40 में मैंने सेल किया था ऑलरेडी बुक्ड, और 65.42 पे मैंने उसको कवर अप करने के लिए, स्क्वायर ऑफ करने के लिए मैंने यहाँ पे उसको कंसिडर किया। तो इंटू $1 lakh will lead to a loss of rupees 2,000, and that is merely been paid to square off my position। ये आपने ऑलरेडी मेरे पास सीखा हुआ है, दैट्स व्हाट द मेथड आई एम गोइंग फॉरवर्ड विद। तो 65.22 हाथ में आए और 2,000 रुपये चले गए एज अ स्क्वायर ऑफ पोजिशन, स्क्वायर ऑफ का लॉस, 60.40 का सेल एंड 65.42 का बाय। अब ये मेरा सेकेंड पॉइंट हो गया, स्टेप 1 सेल ऑफ इन द स्पॉट पोजीशन, स्टेप 2 स्क्वायर ऑफ द पोजीशन, उसका प्रॉफिट लॉस जो है उसको एडजस्ट करेंगे। स्टेप 3 जो यहाँ पे हमें यूज करना है, दैट इज फॉर फिडाई पर्पस, और फिडाई पर्पस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। तो वो स्टेप क्या है, अब ध्यान से सुनना। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप, लेट्स लिसन केयरफुली। व्हाट डज बैंक डू? बैंक इज वेरी स्मार्ट इन दिस एंटायर स्टोरी, वेरी स्मार्ट। देखो, if you want to understand this, you need to have a bit of patience if you want to understand logically। बैंक क्या बोलता है, whenever, I'm sorry, whenever you go for early settlement, आपने बोला कि सर मेरा ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट रेडी है एट 65.40 ऑन 31st of December, लेकिन से 30th November को बंदा बोले पैसा आ चुका है $1 लाख, अर्ली अर्ली सेटलमेंट के लिए रेडी है। बैंक होशियार है, बैंक क्या बोलता है, सर वी आर रेडी टू एग्जीक्यूट इट एट योर रेट। योर रेट मतलब सर 30 नवंबर को कोई भी रेट हो चलेगा, आपको मैं आपके भाव पे पैसा देने को रेडी हूँ, मतलब 65,40,000 जो आपका कमिटमेंट है ना, वो मैं देने को रेडी हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए रेडी हूँ टू सेटल अर्ली। अच्छी बात है। तो 65.40 फ्लैट रेट पे तो मेरे को दे देगा, 30 नवंबर को दे दूंगा सर। देना कब था, 31st December को। दिया कब, 30th November को। ठीक है। तो क्या चार्ज करेगा, चार्ज करूंगा ना सर, आई बी चार्जिंग फ्रॉम यू स्वैप कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट। दिस आर टू कॉस्ट व्हाट बैंक टेल्स यू टू चार्ज। मैं आपको ये दे दूंगा ये रेट, लेकिन आई बी चार्जिंग फ्रॉम यू दिस एंड दिस। तो जो मेथड मैं आपको बता रहा था एज पर आईसीआई, ये वाली मेथड में, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वे दे डू विथ स्वैप कॉस्ट मेथड।
बट स्वैप कॉस्ट को फिलहाल गोली मारो। हमें सीखना क्या है? इंटरेस्ट कॉस्ट सीखना है। वी वांट लर्न इंटरेस्ट कॉस्ट। आई टेल यू। बैंक बोलता है कि मैंने आपको 65,40,000 30 नवंबर को दे दिए, और आपने मुझे आपके डेटर के 1 लाख डॉलर दे दिए, बराबर। जब मैंने आपके 1 लाख डॉलर 30 नवंबर में मार्केट में बेचे, तो मेरे को कितना रुपया मिला? तो आप ध्यान से याद करोगे। द रेट गोइंग ऑन ऑन 30 नवंबर वॉज हाउ मच? 65.22। 30 नवंबर का सेल रेट। बैंक बोला जब मैंने 1 लाख डॉलर मार्केट में उस दिन बेच दिए, मेरे को कितना पैसा मिला? 65,22,000 बैंक को मिला। और बैंक बोला मैंने तेरे को दिया कितना? तेरे रेट पे दिया था, जो कमिटेड रेट था 65,40,000। अब 65,40,000 आई हैव टू पे यू ऑन 31st of December, but I have paid you on 30th of November. And on that day you have given me 65,22,000 instead of 65,40,000. तो मैंने तेरे को 18,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए। बैंक सेज कि मैंने आपको 18,000 रुपये, इज द गैप बिटवीन 65,40,000 पेड बाय बैंक टू द कस्टमर एंड 65,22,000 is the value of 1 lakh dollars what the customer gave to the bank and bank sold in the market. This is 1 lakh into 65.22 per dollar. This is the amount, 1 lakh into 65.40 per dollar agreed rate. अब सर आपको पोपट बनाया जा रहा है। पोपट मतलब फिडाई रूल्स, एकदम जोरदार पोपट बना रहे कस्टमर को। बोलते हैं कि सर मैंने आपको आपका रेट दे दिया 1 महीना अर्ली 65,40,000 पे, और मार्केट में 65,22,000 आपको आता। तो मैंने 18,000 रुपये जो आपको एक्स्ट्रा दिए, 18,000 रुपये जो आपको एक्स्ट्रा दिए, वो 18,000 रुपये आप मुझे जब भी दो, December 31st को, वो 18,000 रुपये का मैं आप पे ब्याज लगा दूंगा। टू बी पेबल ऑन 31 December गिवन ऑन दिस डेट। 18,000 इंटू 18% इंटू 31/365। अब ये जो वैल्यू आती है दैट इज कमिंग टू अप्रोक्सीमेटली 275 रुपीज। तो आप देखोगे ये स्टोरी में अमाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन मैंने कैसे किया है। सी आई टोल्ड यू विल हैव पेशेंस एंड आई टेल यू व्हाई यू विल हैव पेशेंस। Just wait for this session to get over and you will understand why this is going to be bit challenging to understand. Now, amount remitted by bank to customer is 60 lakh 40, and amount received by bank is 6522, which we discussed now. 18,000 rupees surplus given to the customer by the bank. उस पे जो remittance का ब्याज लगेगा, that comes to 18,000 into 18% into 31%, that comes to 275 rupees. इसके बेसिस पे आप ये समझ पाते हो कि फाइनली आपको 65,22 जो मैंने बोला एक्चुअल रिसीट प्रैक्टिकली आपको मिलना चाहिए था। सुनना ध्यान से। 2,000 का आपको स्क्वायर ऑफ चार्ज लग गया, और 275 का आपको क्या लग गया? इंटरेस्ट कॉस्ट लग गया। अब 65,22 जो रियल स्टोरी का रिसीट होना चाहिए था आपका, -2,000 -275, जब आप करोगे तो आपके हाथ में आएंगे कितने? 65,19,275 exact figure. And this figure is your answer what you received as a whole. अब आपको आने कितने चाहिए थे पता है? 65,40,000। अगर ड्यू डेट पे किया होता तो आपको आए कितने? 65,19,000। तो 65,19,275 में 65,40 comes to 20,275 का। This is the loss due to early settlement and this is the money received due to early settlement. अब आगे सुनो। अभी तक की स्टोरी में इंटरेस्ट का वर्किंग अलग बनता है, बाकी जैसे आप करते हो वैसे करते रहना था। Now there is one more method, that is ICI's method to do this. And ICI क्या कहता है? There is a Fedai rule method to be honest. Same situation है। Let's see how they do it. सुनो, ये क्या कहता है? मान लीजिए कि आपने बैंक से फॉरवर्ड सेल जो किया था, that was at 65.40 into 1 lakh dollar,
दैट इज कमिंग टू 65,40,000। बोला मैंने आपको ये पैसा ही दे दिया पूरा, जैसे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन में देखा था, ये पूरा पैसा दे दिया। ब्याज गया, आपका एक्टिवेट गया तेल लेने। अब सिर्फ आप हमें क्या दे दो, प्लस माइनस स्वैप चार्ज प्लस माइनस इंटरेस्ट, बस ये हमें दे दो। हमने आपको 60/40 दिया, अब हमें ये दे दो, गेम खत्म। अब आंसर विल कम सेम इन बोथ द सिचुएशंस, ध्यान से सुनना। अब स्वैप करने का मतलब क्या है पता है? स्वैप मतलब पोजीशन टेकन ऑन 30th नवंबर। अर्ली सेटलमेंट पोजीशन क्या लिया आपने, मैं बताता हूँ। एक आपने क्या किया 30 नवंबर को, कि आपने, आई जस्ट शो यू यार, दैट विल बी इजियर, जस्ट अ सेकेंड। ध्यान देना। आपने 65.20, अभी आपको मैंने बोला जैसे, आपने किया क्या 30 नवंबर को 65.22 का जो रेट चल रहा था स्पॉट में, वो रेट पे आपने माल बेचा होगा रियल लाइफ में बैंक ने, क्योंकि बैंक को माल जो 1 लाख डॉलर है वो बेचेगा कौन से भाव पे, उस दिन के भाव पे 65.22। और बैंक ने आपके आपके बिहाफ पे जो आपको स्क्वायर ऑफ करना था, वो आपका रेट क्या बढ़ा 65.27, जो आपका स्पॉट रेट था बाई का, प्लस 15 पैसे स्वैप पॉइंट टू अराइव एट 1 मंथ लेटर रेट 65.42। अब यहाँ पे इसी चीज को अब मैं आपको टैबलेट फॉर्म में दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो 65,40,000 के बाद आपकी स्वैप पॉइंट की जो स्टोरी है स्वैप की, वो ऐसे बनती है कि आपने सेल स्पॉट किया था 30 नवंबर को एट 65,22,65.22, और आपने बाई 1 मंथ फॉरवर्ड किया एट 65.42, 65.42 दैट इज 65.27 प्लस 0.15, दैट इज 65.42। तो हियर दिस इज बेसिकली कि आपका स्वैप, ये ना कॉस्ट मत समझो, ये आप उसको क्या समझो, स्वैप कॉस्ट, जो इनकी लैंग्वेज है, ये आएगी 20 पैसे इंटू 1 लाख डॉलर, दैट इज 20,000। सुनना ध्यान से, ये आपका स्वैपिंग कॉस्ट मतलब क्या, कि आपने जब ट्रांजेक्शन एक अर्ली सेटलमेंट करने की कोशिश कर, दो चीजें करी, एक सेल स्पॉट एंड बाय फॉरवर्ड। तो सेल स्पॉट और बाय फॉरवर्ड का जो डिफरेंस है ना, दैट इज योर स्वैप कॉस्ट, क्योंकि आपने सेल 65.22 पे किया, बाय 65.42 किया, तो आपका कॉस्ट इज नॉट अ रेवेन्यू, इट्स अ कॉस्ट, फिर 20 पैसे एक्स्ट्रा। और सेम बेसिस पे आपने इंटरेस्ट कंप्यूट किया, कि यहाँ पे आपको वो समझता है कि 65/40 मैंने आपको दे दिए पूरे, 65,40,000 आपके रेट पे अर्ली दिया, और 65.40 के सामने 65,40,000 मैंने आपको दी, मतलब बैंक ने आपको दिए, और बैंक को कितना मिला आपसे 65.22 व्हेन ही सोल्ड योर $1 अर्लियर, दैट इज इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो एक्स्ट्रा 18,000 रुपीज जो बैंक ने आपको एक महीने के आसपास के लिए दिए, उस पर बैंक आपसे 18% के हिसाब से चार्ज करता है, एंड दैट वैल्यू कम्स टू अप्रोक्सीमेट 275। अब वर्किंग को ध्यान से देखो, पहले वाली वर्किंग में हमने क्या किया है देखो, 65,22,000 में से 2,000 माइनस किए, और 275 माइनस किए, एंड वी रिसीव्ड फाइनली 65,19,275। ठीक है, तो हमने क्या लिया, एग्जैक्टली द रेट ऑफ एट विच वी सोल्ड 65,22 से लिया। अब उस वैसा ना करना हो, और ये वाले मेथड से जाओ, बैंक आईसीआई की स्टडी मेट के मेथड से, तो अग्रीड रेट इज 65/40, जो जो उन्होंने हमें दे दिया, बट अभी उन्होंने हमसे क्या चार्ज किया,
स्वैप कॉस्ट। अब स्वैप कॉस्ट इज आपकी पोजीशन का डिफरेंस, सेल स्पॉट और बाय का डिफरेंस, दैट कम टू 20 पैसे पर रुपी इंटू 10,000 इज 20,000। एंड फाइनली इंटरेस्ट ऑफ 275, वर्किंग रिमेन सेम ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी आप देखोगे 65,40,000 माइनस 20,000 माइनस 275, and if once you do that 65,40 minus 20 minus 275, you receive an answer of 6519725। एंड आई थिंक यहाँ पे भी वही था, राइट? आई थिंक एक टोटलिंग एरर है मेरे साइड से। दिस इज 6522, मैंने लिखा 6522 -2 -275, 6519,725 है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, 6519,725 आता है। तो फाइनली दोनों बेसिस पे यू गेट द सेम सिनारियो एंड द सेम सॉल्यूशन का सेम आंसर। अब मैं आपको लॉजिकल वाला इसका छोटा सा समरी दूं। इन अर्ली सेटलमेंट, तो लॉजिकल वे में और आपका नॉर्मल आईसीआई वे पे। लॉजिकल में मैंने क्या किया, इन दिस एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन, स्पॉट ट्रांजेक्शन का रिसीट, इन दिस एग्जांपल ऑफ एक्सपोर्ट रिसीट लिख लिया। सेकेंड पार्ट के अंदर मेरा स्क्वायर ऑफ कॉस्ट ढूंढ लिया, और थर्ड पार्ट के अंदर मुझे जो उसने पैसा दिया और मैंने उसको सेल पे कितना पैसा दिया, उसका जो डिफरेंस है, इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू नंबर ऑफ डेज किया, और आई गॉट इंटरेस्ट। एंड द नेट इज योर आंसर 1 -2 -3। तो यहाँ पे रहेंगे एसपीआई के पार्ट पे, तो आंसर आपको दोनों का सेम ही आएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अग्रीड रेट पे दे विल गिव यू मनी, उस पे आप क्या कर दो, स्वैप कॉस्ट का खर्चा जो है, प्रॉफिट हो या गेन हो या लॉस हो, वो भी स्वैप कॉस्ट का पार्ट जो है उसको आप एडजस्टमेंट दो। स्वैप कॉस्ट पे आप क्या करते हो, आपका स्पॉट और फॉरवर्ड में जो मैं पोजीशन लिया उसका डिफरेंस डाल देते हो, और यहाँ पे आप इंटरेस्ट की वर्किंग दे देते हो। तो अग्री रेट में से आप दोनों माइनस करोगे एंड यू विल बी गेटिंग दिस आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेल। यू लेट मी नो इफ यू हैव अ डाउट टुवर्ड्स इट। हम इसे ही छोटे छोटे पार्ट पे ये वाला अलग अलग फिडाई सिचुएशंस को कवर करेंगे। थैंक यू।